اوکے تو یہ جو آپ کے پاس بیٹری ہے تو جب آپ کے پاس یہ پوری خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا موبائل فون سوئچ آف ہوتا ہے. ڈز اٹ مین کہ جب آپ اس وقت بیٹری باہر نکالیں گے اس کی اور وہ آپ کو 0 وولٹ دے گا؟ نو، it will give you less than 5 volt, maybe 4.9 volt, maybe 4.8 volt, maybe 4.96 volt. It depends on the system کون کتنا کس میں کتنی یہ ہے اس کو پریسیشن ہے. سمجھ آیا؟ سو دس از کالڈ ڈسچارج. تو اس کا مطلب جب یہ پیچھے پہنچا نا یہاں تک اتن تمہ سات تہ آسہ کم سے کم 4.9 وولٹ یہ دِوان. So this doesn't mean the battery has dead. It means the battery is discharged and it is giving its voltage. لیکن کیونکہ موبائل فون جو آپ کا ہے نا سو اخبار سینسٹیو اکوپمنٹ اس میں جو چپس لگی ہوئی اس میں جو سینسرس لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں باقی چیزیں لگی ہوئی اس میں جو پاور سسٹمز لگے ہوئے ہیں انسٹرومنٹیشن سسٹم لگے ہوئے ہیں دے ورک آن پرفیکٹ وولٹیج. ان کو 5 وولٹ چاہیے ان کو پرفیکٹ 5 وولٹ چاہیے ود ریسپیکٹ ٹائم. اف دے نیڈ 5 وولٹ دے نیڈ 5 وولٹ لائک دس. یو کانٹ گو ڈاؤن ان 5 وولٹ. آپ 4.5 وولٹ دو گے 4.7 وولٹ دو گے تو کیا ہو جائے گا کام؟ آپ کا موبائل فون بولے گا نہیں آئی وڈ ورک مے بی میرا کام جو ہوگا وہ ایرونیس ہوگا بیکاز مجھے صحیح وولٹیج نہیں مل رہی ہے. تو اسی لیے جب بھی آپ کے پاس 5 وولٹ سے یہ تھوڑا سا گرنے لگتا ہے تو آپ یہاں پہ بولتے ہو یہ ڈسچارج ہونا سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کام؟ یو جسٹ چارج اٹ. تو آپ موبائل فون میں کیا لگا دیتے ہیں؟ آپ چارجر لگا دیتے ہیں. سو یو یوز این اڈیپٹر. جو آپ کا اڈیپٹر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ چیزیں اس میں لکھا ہوتا ہے 5 وولٹ اڈیپٹر. ٹھیک ہے. پھر اور ایک چیز لکھی ہوتی ہے 1 ایمپیئر اڈیپٹر. کبھی کسی کو لکھتا ہے 2 ایمپیئر اڈیپٹر کسی کو لکھا ہوتا ہے 3 ایمپیئر اڈیپٹر. سو یو سمپلی واٹ یو ڈو آپ کے پاس جب آپ کو چارج کرنا ہے تو یہ آپ کا اڈیپٹر یہ سمپلی ہوتا ہے اے سی تو ڈی سی کنورٹر. تو آپ یہاں سے اس کو 220 وولٹ اے سی پہ لگا دیتے ہیں اور دوسرے سائڈ سے آپ کو 5 وولٹ ڈی سی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ کے پاس 2 ہی ٹرمینلز ہوتے ہیں پلس اینڈ مائنس. تو آپ یہ پلس والا بیٹری کے پلس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور مائنس والا بیٹری کے مائنس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. سمپل چارجنگ یوت آسان. اب ہوتا کیا ہے چونکہ آپ یہاں پہ 5 وولٹ ڈی سی دے رہے ہیں اینڈ اٹ ہیز گاٹ اے گڈ اماؤنٹ آف کرنٹ اور اس وقت یہ جو آپ کے پاس بندہ ہے اس کے پاس لیس دین 5 وولٹس ہیں. سو اوبویسلی this will be at higher potential, this will be at lower potential, so charge will flow into the battery. So charge flows into the battery. اس کی وجہ سے آپ کی جو کیمیکل ریئیکشن ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے. جو بیٹری کی کیمیکل ریئیکشن آلریڈی ریورس ہو چکی تھی ایک ڈائریکشن میں جب ہم نے اس کو ڈسچارج کرا تھا. اب اس کو اسی کیمیکل ریئیکشن کو الٹا کرنا ہے. وہ کس سے ہوتا ہے؟ بائی چارجنگ دس. سو کیمیکل ریئیکشن جو ہی کمپلیٹ ہوگی تو یہ آپ کا جو بیٹری ہے ہم بولیں گے اٹ از فلی چارج. اس وقت پھر یہاں پہ یہ دکھاتا ہے موبائل فون میں کہ ہاں یہ فلی چارج ہو گیا. یو کین ڈسکنیکٹ یور چارجر نا. صحیح ہے. سو اس کے بعد آپ پھر سے اس کو لگا دیتے ہیں اور پھر سے اپنا کام کرتے ہیں. اب مسئلہ ہے یمس اڈیپٹرس کوتاہ کال لگے اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس بیٹری کو چارج کرنے میں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے پہلے ہی دن بولا تھا یا کسی ویڈیو میں بولا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے یہ وت بامر ہر کن چیزس میں وت بامر. عدنان آپ کچھ بولنا چاہتے ہو بیچ میں؟ یس سر کریے آپ کمپلیٹ پہلے. اوکے. تو یہ جو آپ کے پاس ہے انسان کے پاس 2 چیزیں بہت ہی جلدی میں ہونی چاہیے. ڈالرس پیسے 10 پیسے ہوں گے تو 20 چاہیے 20 ہوں گے تو 30 چاہیے 30 ہوں گے تو 40 چاہیے جب تک کروڑ روپے پوچھے گا. اب 10 کروڑ والا انسان بن گیا تو اس کو 20 کروڑ چاہیے. ٹھیک ہے. اب ارب مل گئے تو اب اربوں والا بندہ بن گیا تو اس کو 10 ارب چاہیے. یہ تو انسان کی فطرت ہے. آتے کو اس کی ہی کرے. اور دوسری فطرت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھی ہوئی دیٹس ٹائم. اور انسان چاہتا ہے جلدی میں ہو جائے. تو اگر آپ کو موبائل کو چارج کرنے میں لگ رہا ہے 1 آور آپ بولتے ہو نہ حظ نہ یہ گھنٹس گھنٹس میں ہاف این آور. اچھا اب آدھے گھنٹے میں چارج ہو رہا ہے یہ ونان نہ حظ نہ یہ گھس گژھُن 15 منٹن میں چارج. چلو آپ ٹیکنالوجی نکلی 15 منٹ میں چارج ہو رہا ہے بس یہ گھس گژھُن سیودُے میں لوگ موبائل تو بس یہ گژھِ چارج گژھُن بہٕ ژھٕنہٕ یہِ کٔڑِتھ. پتہٕ اگر تہِ گژھِ نا پتہٕ واتہِ دپان کیٛاہ چھِ انسان دپان مےٚ کتھ چھُ یہِ وۄنۍ چارجی گژھُن یہِ نہ حظ گوٚژھ چارجی لگاوُن چارجرسٕے پیوٚن لگاوُن یہِ گوٚژھ پانے چارج گژھُن استعمال کران یا اتھ گوٚژھ نہٕ پیونٕے چارجر کنیکشن لگاوُن. تو اوبویسلی انسان ہمیشہ لالچی ہے ہمیشہ یہ چیزیں چاہتا ہے. تو کبھی بھی اسی لیے بولتے ہیں نا کبھی بھی ہمیشہ اپنے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے. داناؤں کا قول ہے اور اسلام بھی بولتا ہے کہ پانس ہیوٚر گژھِ نہٕ وٕچھُن کِہیٖنۍ کیٛازِ اگر ژٕ پگاہ تور ووتُکھ ژےٚ باسی بیٚیہِ تی تو لالچ میں گر جائے گا تمہیں آگے 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 پتہ نہیں تو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو زندگی میں سیٹسفائی رہنا ہے
तो अपने से नीचे को देखो, तो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि शुक्र अल्लाह ताला को मैं ठीक हूँ, सो यू विल बी सेटिस्फाइड। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड व्हेन यू लुक उस चीज़ पे जो आपसे ऊपर हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमें, तो यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, टाइम कम 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 यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या करना है जिसकी वजह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली आपने यहाँ से 5 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे भी इसने 5 वोल्ट पकड़ लिया, तो इसको जल्दी में कौन चार्ज करेगा? ऑब्वियसली जो चार्जर इसको ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे पाएगा, बिकॉज एक्चुअली सिंपली टू बी फिल्ड विथ चार्ज द केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी रिवर्स, दैट केमिकल रिएक्शन विल बी रिवर्स बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू विल pinch in, that will pump in per unit time. So that is dependent on not on voltage, that is dependent on number of electrons. So जितना आप इसको करंट दे सको, जितना आप इसको करंट दे सको, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा करंट दोगे तो उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा ज़्यादा जल्दी से आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा। इसीलिए जो नॉर्मल चार्जर्स हैं, उसके बाद आ गए चार्जर्स जिनको हमने बोला फास्ट चार्जर्स। इसका मतलब फास्ट चार्जर में क्या सहूलियत है? जो नॉर्मल चार्जर्स होते थे ना, वो होते थे 1 एम्पियर के, उसके बाद आपको आ गए 2 एम्पियर और 3 एम्पियर के चार्जर्स। मीन्स व्हेन यू हैव अ 2 एम्पियर और 3 एम्पियर चार्जर, मीन्स इट कैन पंप इन मोर करंट टू योर बैटरी देन 1 एम्पियर चार्जर। अगर हम सिंपली 1 एम्पियर और 2 एम्पियर चार्जर में डिफरेंस देखें, 1 एम्पियर चार्जर और 2 एम्पियर चार्जर जो है वो हाफ टाइम में करेगा चार्ज एज कम्प्यूटर अगर आपके पास 1 एम्पियर चार्जर होगा। वही है बात, ये हो गया फास्ट चार्ज। उसके बाद लोगों ने बोला अरे यार फास्ट चार्जिंग क्या, हमें और तेज़ी होनी चाहिए, हमें अभी भी आधा घंटा लग रहा है, हमें 15 मिनट में चार्ज होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने सोचा लेट अस वर्क ऑन वोल्टेज, because after all it is actually not current only and voltage only that we will say कि जिस ये बैटरी क्या कैपेसिटी, ठीक है, असली चीज़ जो बोलती है ना इस बैटरी की कैपेसिटी है, वो हो गई इसकी वॉटेज W, एंड दैट इज इक्वल टू ये पावर, दैट इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। सो अगर ये 5 वोल्ट की है मल्टीप्लाइड बाई 3 एम्पियर की है जैसे मैंने अभी किया, सो इस 5 तो ये 15 वाट की बैटरी। तो असल में मुझे ये 15 वाट फिल करने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे हम कितना बढ़ाएंगे, मैक्सिमम कितना करेंगे इस एम्पियर को। अगर आपने 3 एम्पियर किया, उसके बाद आपने किया 5 एम्पियर, उसके बाद आपने किया 10 एम्पियर चार्जर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझता रहा? यहाँ पे आपने बोला लेटर सपोज सर आपने बोला 2 एम्पियर में फिट करूँगा, सो इट विल बी फास्ट चार्जर। अगर मैं उसके बाद 5 एम्पियर लगाऊंगा विल इट बी अल्ट्रा फास्ट चार्जर। अगर मैं उसके बाद 10 एम्पियर लगाऊंगा विल इट बी फ्लैश चार्जर कि एक ही फ्लैश में करेगा? नो, इट इज़ नॉट ओनली, इट डजंट ओनली डिपेंड ऑन दिस चार्जर कि ये कितना करंट पंप कर सकता है, ये इस बैटरी पे भी डिपेंड है ना कि ये कितनी करंट ले सकता है। तो ये बैटरी जो है इस पे एक लिमिट है, द मैक्सिमम करंट दैट इट कैन ड्रॉ, इफ द मैक्सिमम करंट दैट इट कैन ड्रॉ इनटू इटसेल्फ इज ओनली 2 एम्पियर। फिर आप यहाँ पर 150 एम्पियर चार्जर भी लगाओगे ना, ये अपने ही 2 एम्पियर लेगा, दैट मीन्स ये अभी भी आधा घंटा बराबर देगा। आपने यहाँ से 200 एम्पियर का चार्जर लगा दिया, इम्स लगन तो बराबर सो पावन आधा घंटा चार्ज कर। समझ आ रहा है? व्हाई? बिकॉज the battery has a thing called a current capacity C, that is the total current that it can allow to pass into it while charging, and that is a limit। और आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी टैंकी आपने यहाँ से रखी हुई है, ठीक है, तो तुम बड़ टैंकी, और यहाँ से आपने क्या किया है काम, नल कुछ तुम खाली ओडंट, तो जब नल का ओडंट है तो पानी कितना निकलेगा? ओडंट निकलेगा ना। अब आपने डबल टैंकी रखी, 5 टैंकियाँ लगाई, और जो नल का आपने रखा है वो फिर भी अर्डेंट है, तो पानी तो अर्डेंट ही आएगा ना। बराबर वैसा ही यहाँ पे है। सो यू विल हैव द मैक्सिमम लिमिट विल बी ऑन दिस बैटरी, इट विल बी 2 एम्पियर। वहीं कैशियम करा के हम जो अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स हैं या जो सुपर फास्ट चार्जर्स हैं उनमें क्या करते हैं, दे आइदर चेंज द बैटरी टेक्नोलॉजी, they change the battery technology so that you can have batteries that will have greater than 2 ampere charging capacity। अगर ऐसी बैटरीज लगा दी तो जल्दी चार्ज हो जाएंगे। दूसरा मैंने बोला व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, दे वर्क ऑन वोल्टेज। अभी वो बोल रहे थे चलो जी हमारे पास जो बैटरी है वी आर यूजिंग 5 वोल्ट बैटरी 3 एम्पियर बैटरी, तो ये बोलेंगे कल को बोलेंगे नहीं वी वोंट यूज 5 वोल्ट 3 एम्पियर, लेट अस यूज
12 वोल्ट 3 एम्पियर बैटरी। अब इससे क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज तो आपको बराबर 12 वोल्ट देनी है, ठीक है, और जो करंट आपको देनी है वो अगर आप मैक्सिमम 1 एम्पियर दे सकते हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 12 वाट हो गए ना, दैट मीन्स यू आर एबल टू अप्लाई 12 वाट। वोल्टेज बढ़ाने की वजह से भी आपको एक फायदा मिल गया कि जो पावर आप इसको दे पा रहे हो उसमें आपने ऑलरेडी वोल्टेज वाला कंपोनेंट बढ़ा दिया है। मगर इसमें एक गड़बड़ ये होती है कि इंटरनली जो आपके पास मोबाइल फोन में कंपोनेंट्स होते हैं दे वर्क ऑन 5 volts. If you charge the battery on 12 volts, then you have to convert the 12 volt back to 5 volt, and then it can be used in the battery. So चार्जिंग आपकी हो जाएगी तेज, मगर अंदर की बड़ी सर्किट थोड़ा, और उस सर्किट की वजह से कोई बात नहीं, मुझे भी क्लास है तो अब मैं आपको छोड़ूंगा बराबर एट 12:50, ठीक है। मुझे लगता है जिसका ये क्वेश्चन था उसको समझ आ गया। तो सिंपली याद रखना है किसका था ये, सुनत का आए थे। सो ये सिंपली याद रखना है आपको सबको, इनफैक्ट सुनत क्योंकि उसने क्वेश्चन किया था। वो जो चार्जर्स आपके पास होते हैं सिंपल चार्जर्स, दे आर 5 वोल्ट, दे give you 1 ampere or 2 ampere. Fast chargers give more amperes, but at last there is a limit on what is the total current that a battery can take. इसीलिए जो अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स आपके पास होते हैं वहाँ पे वोल्टेज बढ़ाई जाती है, एंड यू कैन इजीली चेक इट। तो ऐसा ना मोबाइल फोन था आज देखिए था एडेप्टर किधर, एडेप्टर्स को ऐसे लिखा होता होगा 5 वोल्ट at the rate of 3 ampere, 9 volt at the rate of 2.5 ampere, 12 वोल्ट एट द रेट ऑफ 2.5 एम्पियर। आज आप वोल्टेज लिखे कि ऐसे देखना आपने इसको बराबर ऐसे लिखा होगा, मींस आपके पास जो अडेप्टर है वो अडेप्टिव है। इसी वो एक टर्म होती थी अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। आज अडेप्टर करंट चेक में कुछ मोबाइल कई तरीके मोबाइल चला गए बह ना सो 5 वोल्ट 3 एम्पियरस पे चार्ज कि बह हाई वोल्टेज 12 वोल्टस तो 2 एम्पियरस पे चार्ज कि बह मीडियम 9 वोल्ट 2.5 एम्पियर पे चार्ज। वो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करता है सो दैट ये जो आपके पास मोबाइल फोन है जल्दी में चार्ज हो, समझ आया। बाकी उसके पीछे जो पावर सप्लाई ये है इसका इंटरनल, ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, वो तो हमारा ओवरऑल चल ही रहा है, वो तो हमें देखना है, दैट इज आवर मेक, यानी कि एक एक कंपोनेंट लेके हमें देखना है उसमें कि लास्ट में पावर सप्लाई कैसे बनाएंगे। इंशाल्लाह यू विल हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट वायरिंग, यू विल हैव टू मेक खुद से एक चार्जर फॉर योर मोबाइल फोन, लेट इट बी ए फास्ट चार्जर, ठीक है। चलिए आप बोलेगा अदनान। सर मेरा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है दूसरी। कौन सी, तो अभी तू तो 11:45 हो गए। सर उनने कहा है कि ये जल्दी ज्वाइन करे, आज फ्राइडे है ना इसलिए, तो उनने मैसेज डाली है ग्रुप में। चलो कोई बात नहीं, 11:45 तक थी ये क्लास, तो 11:42 हो गए। कोई मसला नहीं, चलो ठीक है। आप बोल इंशाल्लाह रहे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो। हैं आसिम, आपको मत कुछ बोलना था। सर ये चार्जर का अडाप्टर का गर्म होना किस पे डिपेंड करता है? मतलब कुछ अडाप्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, मतलब बहुत जल्दी भी नहीं, अगर थोड़ा टाइम के लिए लगा के रखे तो गर्म होते हैं वो। चार्जर तो जो सर है, किस पे जो डिपेंड याद करता है? रखना, जो भी पावर डिवाइसेस आपके पास होती है जहाँ से पावर चलेगा, जहाँ से करंट जाएगी ना, उनका गर्म होना लाजमी होता है, गर्म होंगे ही होंगे वो। अब डिपेंड करता है आपने कितने टाइम तक उसको रखा चार्ज के लिए, उतना ज़्यादा गर्म होगा। और वो डिपेंड करता है अंदर से जिस कंपनी ने वो बनाया होगा क्या उसने उसमें रखा है कि गर्मी इक्वली बाहर निकल रही है फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द, मतलब जो भी चार्जर होता है। और आजकल के सर वो ज़माने रेजिस्टर्स पे वो, डिपेंड करता है क्या? हाँ, और रेजिस्टर्स पे नहीं डिपेंड नहीं, करता है कोई क्या? भी डिवाइस, कहती डिवाइस, कोई भी डिवाइस जहां से आपकी करंट चलेगी, ठीक है, वो गर्म होगा ही होगा एज लॉन्ग एज इट इज डिसिपेटिव, दैट मीन्स रेजिस्टर टाइप। अगर इसमें डिसिपेट हो रही है करंट सो इट विल बी डिसिपेटेड हीट एंड ये गर्म होगा ही होगा। सो अडेप्टर का गर्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे उससे ये हमें अखज़ नहीं करना चाहिए कि ये खराब है, मगर ये देखना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो गर्मी वहाँ से निकल रही है ये शुड हैकन डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली किया। क्योंकि अगर आपके पास हीट निकल रही है एंड यू कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट इट, तो टेम्परेचर बढ़ान की ही। अगर आपके पास हीट एनर्जी निकल रही है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो ये हीट एनर्जी एक ही जगह पे आ जाती है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से चार्जर आपका जल सकता है। सो गर्म होना मसला नहीं है, ज़्यादा गर्म मसला है। अगर ज़्यादा गर्म हो, और वो किससे होगा, व्हेन यू चार्ज द थिंग, व्हेन देयर विल बी करंट देयर विल बी ऑब्वियसली हीट, हीट एनर्जी कहाँ जाएगी। ये सर, थैंक यू सर। चलो ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। आपकी क्लास है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्लास। थैंक यू।